یوحنا 16 باب اس کی 33 آیت کھولے میں سب. یوحنا 16 باب 33. یسوع نے کہا میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. یہ اس لیے باتیں کرتا ہے, اس لیے وہ تسلیاں دیتا ہے. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو. اب جس کو بولو یہاں پر سارے یہاں جو بیٹھے آپ کسی کو ذرا سا چیک کریں, اس کو کھولیں تو اس کی زندگی کا جو پہلا باب کھولیں گے اس کا جو ٹائٹل ہوگا وہ مصیبتیں ہوگا. ایسا ہی ہے نا. درمیان میں سے کتاب کھولیں وہاں پر بھی جو صفحہ ہوگا اس پر بھی مصیبتیں ہوں گی. آخری صفحہ کھولیں اپنی زندگی کا اس پر کیا ہوگی. ابھی چونکہ وہ آپ نے پڑھا نہیں, ابھی آیا نہیں. ہماری مصیبت یہ ہے ہمیں اپنے ماضی کی جو چیپٹرز ہیں ان کا پتہ ہے جن میں سے گزر رہے ہیں, اور ہمیں اس چیپٹر کو پتہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. اس میں ہمیں بہت دفعہ جگہ جگہ بارہا مصیبتیں ہی مصیبتیں نظر آتی ہیں. وہ یسوع کہتا ہے دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو. یہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں, اپنے پیاروں سے کہہ رہے ہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں مصیبت نہیں اٹھا رہے. جی جمے اس لیے, پیدا ہی دنیا میں اس لیے ہوئے کہ مصیبت اٹھائیں. ایوب اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ آدمی جو عورت سے پیدا ہوا ہے تھوڑے دنوں میں, دن تھوڑے نے آگے کے لیے تھوڑے دنوں کا ہے پر دکھوں سے. یسوع کیا کہتا ہے مصیبت دنیا میں مصیبت, لیکن آگے جب لیکن آئے تو سمجھیں کہ آگے اس مشکل کا حل بھی ہے. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو. اس کا مطلب ہے حوصلہ رکھو, گھبراؤ نہیں, پریشان مت ہو. میں دنیا پر غالب آیا ہوں. دنیا میں موت ہے, میں موت پر. دنیا میں بیماری ہے, میں بیماری پر. دنیا میں دکھ اور پریشانیاں ہیں, میں دکھوں پریشانیوں پر. دنیا میں ابلیس اور گدروہیں ہیں, میں ابلیس اور گدروہوں پر. خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا. اور اگر لیڈر غالب آیا ہے تو اس کے فالوور بھی اس کے ساتھ اس غلبہ میں شامل ہے. اس لیے پولس کہتا ہے, اس لیے رومیو کا مصنف کہتا ہے کہ وہ ہمیں مسیح یسوع میں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. میرے عزیز, ایوب کا امتحان ہمیں کچھ سبق سکھاتا ہے. نمبر 1, خدا نے ایوب کا امتحان لیا تاکہ اس کے کریکٹر کو ظاہر کرے. اس کا کریکٹر کیسا ہے, اس کا کردار کیسا ہے. کچھ لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. وہ سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں, کر کچھ اور رہتے ہیں. وہ کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. وہ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو اور ساتھ ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں برائی مت کرو دوسروں کو, لیکن خود اسی برائی میں ملوث ہوتے ہیں, جیسے فقیہ اور فریسی کرتے تھے. یہ ریاکار تھے, ہپوکریٹس سے. اور خدا ان سے نفرت کرتا ہے جو ہپوکریٹس ہیں, جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اس واسطے ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ امتحانوں میں سے گزرنے کے دفعہ خدا ہمارے کریکٹر کا امتحان لے رہا ہوتا ہے. خدا گواہی دیتا ہے, ابلیس کو کہتا ہے میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے, اس جیسا کامل راست باز خدا کا خوف رکھنے والا اور کوئی نہیں ہے. یہ اس کے کریکٹر ہے. کیا ایوب اپنے اس کریکٹر پر قائم رہا؟ کیا وہ اس امتحان میں پاس ہوا؟ کیا اس کی کاملیت چلی گئی اس کی دولت کے ساتھ, اس کے بچوں کے ساتھ, اس کی خوبصورتی کے ساتھ؟ ہرگز نہیں. وہ اپنے اس امتحان میں کامیاب رہا. افسوسناک بات یہ ہے کئی دفعہ
इंसान शोहरत और अमीरी दौलत की बहुतात के साथ अपने करैक्टर को गवा बैठता है। और यहाँ लिखा है अहले मशरिक में सुने, आंखें खोल कर सुने सब, आंखें खोल के कलाम सुने। अहले मशरिक में वो सबसे ज़्यादा अमीर शख्स था, दौलत की बहुतात है पर करैक्टर में मजबूत है, किरदार में पुख्ता है, इसकी ज़िंदगी में, इसकी ज़ुबान में कोई छल नहीं। जब अयूब इस इम्तिहान में से गुजरा, खुदा ने उसके करैक्टर को ज़ाहिर किया। खुदा आपका करैक्टर भी ज़ाहिर करेगा अगर कभी आप इम्तिहान में से गुजरेंगे। क्या ज़रूरत है फिर हम इस इम्तिहान में पास होके दिखाएं। अयूब की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत पढ़ें, खुदा उसके करैक्टर को रिवील कर रहा है। देखिए क्या लिखा है यहाँ, पढ़ दे कोई ऊंची आवाज से। खुदावन ने शैतान से कहा, ये देखिए खुदा जाहिर कर रहा है, खुदा रिवील कर रहा है जी। क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कभी कुछ गौर किया? क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कभी कुछ गौर किया? आगे, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। कौन कह रहा है, कौन गवाही दे रहा है, कौन अयूब के कैरेक्टर को जाहिर कर रहा है? खुदा झूठ बोलेगा, खुदा रिश्वत लेता है, खुदा पैसे लेके किसी के किरदार को बदल सकता है जी। खुदा वही कहता है जो सच होता है, और यहाँ खुदा बिल्कुल सच्चाई को जाहिर कर रहा है जो अयूब की जिंदगी में थी। खुदा इस इम्तिहान में अयूब के कैरेक्टर को रिवील कर रहा है। आप अगर तरक्की कर रहे हैं, आपके पास माल और दौलत बढ़ रहा है, आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अपने कैरेक्टर पर ज़रूर ध्यान रखिए, कहीं इसको लूज ना होने दें। अयूब ने अपने कैरेक्टर को किसी भी हाल में लूज नहीं होने दिया। He never lost his character। अगर जो वो इतना मर्तबे वाला शख्स है। नंबर 2, खुदा अयूब को और उसके दोस्तों को एक सबक सिखा रहा है अयूब के ज़रिए से। अयूब का इम्तिहान है और दूसरों को भी सबक सिखा रहा है। कभी कभी हम किसी के इम्तिहान से सबक नहीं सीखते, दूसरों के हालात से सबक सीखने को एक आम सा लफ्ज़ है, जैसे कहते हैं इबरत पकड़ना। इबरत समझते कि किसी को बुरे हाल में देख के आपे डर जाना कि मेरे नाल एंजो, ये इबरत होती है ना। खुदा अयूब को और उसके साथियों को, दोस्तों को भी एक सबक सिखा रहा था। इम्तिहान अयूब का ये सबक क्या था? नंबर 1, सब्र करना सीखो। इसलिए अयूब को साबिर कहा गया। क्या सबक सिखा रहा है खुदा अयूब को? सब्र करना सीखो। सब्र का फल मीठा होता है। और सब्र कैसे आता है? सब्र के साथ। मैं सब्र देना, सब्र के साथ आप सब्र मांगे खुदा से। और कैसे सब्र मांगेंगे? खुदा मुझे सब्र दे और अभी दे। ये बेसब्री से सब्र मांगे तो सब्र मिलेगा? सब्र तभी मिलता है जब कोई चक्की में से गुजरता है, जब कोई दुखों की अग्नि में से तपता हुआ गुजरता है। नंबर 2, दूसरा सबक क्या था? खुदा पर भरोसा रखना। ट्रस्ट इन गॉड। अयूब के लिए अच्छे दिनों में हर कोई देगे चढ़ाकर, शुक्रगुजारियाँ करा के, हदिये चंदे देकर, मीटिंग्स करा के वो
खुदा पर भरोसा रखने का इकरार करता है, पर जब कुछ ना रहे तब क्या करना है? किस पर भरोसा रखना है? तब भी खुदा पर भरोसा रखें। अब कुछ नहीं, जब सब कुछ था खुदा साथ था, अब कुछ नहीं साथ रहा तो भी खुदा साथ है। इसलिए खुदा यीशु से कहता है कि ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझसे दस्त बरदार होऊंगा। खुदा पर भरोसा रखना सीखें, क्योंकि अय्यूब के इम्तिहान में कुछ यही था कि वो उसको एक सबक सिखा रहा था, ट्रस्ट करने का, पेशेंस, सब्र सिखा रहा था। आखिरी बात, अय्यूब के इम्तिहान में खुदा अय्यूब को क्या करना चाहता था? नंबर एक, खुदा ने क्या किया? नंबर एक, अय्यूब के किरदार को जाहिर किया। नंबर दो, उसे सबक सिखाया। आखिरी बात, उसके इम्तिहान का मकसद क्या था? आखिरी बात, तीसरी बात ये था कि खुदा उसको डबल बरकत देना चाहता था, खुदा उसे ब्लेस करना चाहता था, इसलिए उसका इम्तिहान ले लिया। ऐसा हुआ। जो कुछ अय्यूब का खोया उसको कितना मिला? दुगना, दुगना मिला, डबल मिला। आप खुश हो? अच्छा, आप खुश हो कि आपका अगर खुदा के रास्ते में चलते हुए कुछ खो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? और ये नहीं कि जाके घर जाके 20,000 वैसे दुआ हो जाती, खुदा दे रहे दुआ दे 40 मिल जाएगा, ऐसे मिलता। वो डबल बरकत लेने के लिए एक मुसीबतों की बहुत बड़ी भट्टी थी जिसमें से हज़रत अय्यूब को गुजरना पड़ा। हेलो हज़रत, आप क्या समझते हैं? डबल बरकत हमें मिल जाती है? डबल बरकत पाने के लिए डबल मुसीबत में से गुजरना पड़ता है। इम्तिहान भी सख्त है, इम्तिहान भी सख्त है। जो लोग बड़े बड़े ओहदों के लिए इम्तिहान देने जाते हैं उनके इम्तिहान सख्त लिए जाते हैं। फौज में जाने के लिए, दूसरे अदारों में जाने के लिए, CSS के इम्तिहान देने के लिए उनको सख्त इम्तिहान में से गुजरना पड़ता है, तभी वो जाके सरकारी ऑफिसर्स लगते हैं, बड़े बड़े इम्तिहान देते हैं। तीसरी बात, क्यों खुदा उसका इम्तिहान ले रहा था? टू ब्लेस हिम, उसे बरकत देने के लिए। आज का टॉपिक था बाबरकत मुसीबतें। आपकी मुसीबत, दाऊद गालिबन कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे यहाँ, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई। जी, क्या आप भी ये कहेंगे? अच्छा हुआ मैं मुसीबत को गुजरा, क्यों? मुझे ये बरकत देगी, मुझे खुदा के आइन सिखाएगी, मैं खुदा के और करीब हो जाऊंगा, मैं सब्र सीखूंगा, मेरा कैरेक्टर खुदा रिवील करेगा कि मैं किस कदर नेक पाक हूँ। हर हाल में खुदा मेरे साथ होगा। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आपको बरकत।